السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ تمام حضرات کو سب سے پہلے اس پرمسرت شب نوروز کی مبارکباد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم لوگوں نے کیوں رکھا ہے، ہر سنڈے 9 بجے ہم ان آیات کے بارے میں بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں جن پر جتندر تیاگی یعنی جو پہلے وسیم رضوی کے نام سے مشہور تھا، جو اشکالات اس نے قرآن کریم کی ان 26 آیات پر کھڑے کیے ہیں، ان کا ہم آپ کے سامنے جواب پیش کر رہے ہیں، اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس شخص نے اس قرآن کی تحریف کرنے کی کوشش کی ہے اور قرآنی آیات کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج کا جو پروگرام ہوگا، کیونکہ کل نوروز مبارک بھی ہے، تو اس پروگرام کے 2 حصے ہوں گے۔ آج پہلا حصہ ہم جس طریقے سے قرآنی آیات کے ذریعے سے اور احادیث ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے جتندر تیاگی کو ان سوالوں کے جوابات پیش کرتے ہیں جو انہوں نے کھڑے کیے ہیں، اور دوسرے حصے میں آج کے اس پروگرام میں ہم نوروز کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ نوروز کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تعاون کر رہے ہیں قبلہ سید عادل مرتضی الموسوی کشمیری صاحب۔ تو ہم قبلہ کو اس پر مسرت شب کی پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسعد اللہ ایامنا وایامکم بالعید نوروز العالم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور قبلہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے گفتگو کی قرآن کے سلسلے میں، اور جو جتندر تیاگی کے جو سوالات اور اشکالات ہیں، آپ نے احسن طریقے سے ان کا جواب پیش کیا۔ تو آج کا یہ ایپیسوڈ جو ہے دوسری آیت کے سلسلے میں ہوگا کہ جو سورہ آل عمران کی 151 والی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ تو قبلہ اس آیت پہ آج جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بتائیں کہ کس طریقے سے یہ آیت ہمیں گائیڈنس کر رہی ہے، ہمیں ہدایت دے رہی ہے، اور اس تیاگی نے کس انداز سے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ جیسے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ مسٹر تیاگی صاحب، یہ ہمیشہ ان کا فیشن ہے، ایک تو ان کی رغبت یا معلومات لغت عربی سے واقف نہیں ہے، پہلی بات، اور وہ بھی کلام اللہ جو اللہ کا کلام ہے قرآن شریف، اور نہ اس کے پاس وہ ہنر ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک شخص عربی سے واقف ہو، یعنی عرب جو عام عربی بھی ہیں، جس کی مادری زبان عربی ہے، وہ بھی تفسیر یا تعویل نہیں کر سکتا ہے جب تک نہ اس کے پاس علم اللغہ ہو، تفقہ ہو لغت میں، اور اس کے پاس علم بدیع ہو، علم معانی، اور جو بھی علوم ہیں اس کے ساتھ، جو صرف و نحو کے ساتھ ساتھ دیگر علوم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اسباب نزول اور شان نزول پہ بھی اس کی نظر ہو، تبھی ایک شخص کسی چیز پہ اپنا تجزیہ کر سکتا ہے، وہ بھی جب اسے روایات محمدی سنت نبوی کی روشنی میں، نہ کہ تفصیل بالرائے، یعنی اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن میں رعب آیا ہے، جب
یہ آیت جو انہوں نے مورد ہدف قرار دی ہے، جس طرح کہ آپ نے اس کی احسن تلاوت کی، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یعنی پہلا ہے یہاں پہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، سنلقی قریب میں، یعنی قریب، ان قریب، یعنی کتنا ان قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کبھی کہتا ہے کہ سوف آپ کا جہنم کا آپ نظارہ کرو گے، تو یہاں پہ یہ جو ٹائم کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ایک فلاسفیکل آرگیومنٹ ہے، یہاں پہ جو وقت ہے یہ زمین کے وقت کے متعلق بات ہو رہی ہے، اسپیس کے یا جو اللہ کے یہاں ٹائم ہے، یوم الساعہ کے متعلق، یہ قیامت کے دن کا ہولناک جو پکچرز کی اس آیت کریں کہ قیامت کے متعلق اصل میں جن سے مخاطب ہیں پاک پروردگار، وہ تو دکھا رہے ہیں کافروں کو کہ قیامت کے دن آپ کے دلوں میں رعب، یعنی اب اس نے کنفیوژن کہاں پہ ہو گیا، اس نے رعب کو اردو معنی میں لیا، بمعنی خوف، بمعنی خوف means یعنی to terrify someone، یعنی کسی کو ڈرانا۔ تو اس نے کہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یعنی ان قریب they will be terrified، نہیں، معنی یہ نہیں ہے، الرعب یہ حالت نفسیہ، جو رعب ہے یہ ایک نفسیانی حالت ہے، کیفیت ہے۔ کبھی کسی کو اس کی مثال اگر دے، اندھیرے سے ایک بچے کو رعب حاصل ہو سکتا ہے، یا کبھی ایسے حالات آندھی ہوتی ہیں تو ایک نفسیانی، جب انسان کا دل گھبراتا ہے، یہاں پہ جسمانی رعب کی بات نہیں کی جاتی ہے، یہاں حالت نفسیانی بات ہو رہی ہے کہ حالت نفسانی what will be their psychic condition, their mental condition will be، جو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، یعنی قیامت کے ان کی کیسی حالت ہوگی، ان پہ رعب طاری ہوگا، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کسی پہ رعب طاری ہونا، یعنی ایک خوف زدہ ہونا۔ خوف زدہ ہم کس سے ہوتے ہیں؟ جب کوئی آگ دیکھتا ہے یا کسی کو ڈرائے ہم تو، اور خوف قرآن میں بھی کسی جگہ خوف کے معنی نہیں آئے کہ وہاں پہ انذار آیا ہے، قرآن نے الگ الگ ڈکشنز یوز کیے ہیں، جب قیامت کے ڈر وہاں انذار آیا ہے، جہنم کی آگ سے ڈراؤ، کبھی آیا قو انفسکم، وہاں پہ بھی نہیں ہے ڈرانا، وہاں بچانا ہے، انقاذ۔ اور یہاں پہ رعب ہوا ہے کہ ایک کافر جس نے کفر کیا ہے، وہ اوپر کی آیت میں اشارہ ہو کہ اے مومنو اگر آپ نے کافروں کی اطاعت کی، یعنی اگر آپ نے کافروں کی اطاعت کی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، الذین کفروا یردونکم علی اعقابکم، وہ چاہتے ہیں کہ you should turn to your toes، یعنی یہاں پہ قہقرہ، یعنی قہقرہ کا مقصد اوپر آیا کہ قہقرہ، حالت قہقرہ کس کو کہتے ہیں؟ جب ایک انسان پچھلی حالت پہ واپس پلٹے، to return to the old state، اور اسے معلوم بھی نہ ہو میں کیسے وہاں پہ آیا، یعنی جنہیں ہدایت ہوئی تھی، جو عرب میں پیگنزم تھا، اور جو وہاں اندھیرا تھا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے بھائی، یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ پچھلی حالت پہ، پیگنزم پہ واپس آؤ، یعنی وہاں پہ جس طرح وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے، یا جس خدا کو جب روٹی خدا کی شکل کی، یا کھجور کا مجسمہ، یا باقی کچھ جب بھوک لگتی تھی تو اسی بت کو وہ کھاتے تھے، ان کی کیفیت الگ تھی، یا وہ لہو و لعب میں وہ ہمیشہ کفار چاہتے تھے کہ یہ اسی سٹیٹ پہ واپس آئے۔ یہاں پہ سٹیٹ کی بات ہو رہی ہے پہلی، یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ پچھلی حالت پہ، پچھلی سٹیٹ پہ آپ پلٹ آؤ، کیونکہ آپ ان کے جیسے ہو جاؤ۔ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہدایت یافتہ، آپ کو ہدایت سے ان کا کوئی غرض نہیں ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے، ان کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے، ان کے پاس ایک حالت کفر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس حالت کفر میں، یعنی حالت کفر کیا ہے یہاں پہ؟ پیگنزم، جو جاہلیت تھی، جو عرب کی جاہلیت، آپ یعنی 10 سال عرب، یعنی 300 سال عرب، یعنی حرب الفسوق اگر ہم پڑھے، فاسقوں کی جنگ جو ایک اونٹنی پہ شروع ہو گئی تو سالہا عربوں میں چلی، یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی حالت میں واپس آؤ، ایک دوسرے سے لڑو۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ شب خون مارتا تھا، یعنی نائٹ میں وہ انویڈ کرتا تھا، حملہ کرتا تھا، تو ان کی بیٹیوں کو لیتے تھے
تو اسی لیے عرب اپنے آنر اپنی عرض کو بچانے کے لیے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کرتے تھے. یعنی بہت ہی وخیم و بہت ہی خطرناک سچویشن تھی عرب سوسائٹی کی. یعنی جس حالت میں ایک بیٹا اپنی ماں پہ حملہ کرتا تھا, خود اپنے باپ پہ شمشیر اٹھا کے اپنی ماں کو وہ اغوا کرتا تھا, پھر اپنی ماں کے ہی ساتھ شادی کرتا تھا, ایسی سچویشن. یعنی اپنی بہنوں پہ ہی وہ حکومت چلاتا تھا, ان کو اغوا کر کے ان کے ساتھ شادی کرتا تھا. یعنی ایسی سوسائٹی تھی یہ حالت, سچویشن. مسٹر تیاگی کو پہلے سچویشن سیکھنی ہے, اسے ہی شوڈ کنسلٹ یعنی فلپ ہٹی کو پڑھے جو ایک اورینٹلسٹ ہے, یا رینالڈ نکلسن یہ بھی ایک اورینٹلسٹ ہے, یا کوونز. انہوں نے اس عرب ہسٹری پہ انہوں نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں. فلپ ہٹی نے ہسٹری آف عربس, اور جس کی رونالڈ نکلسن جو علامہ اقبال کے استاد رہے ہیں انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے, اور ٹرانسلیشن بھی بہت ہی اچھی کتابوں کا کیا ہے. معادی کے صوفی مسٹک پوئمز پہ بھی اس نے رینالڈ نکلسن نے ترجمہ کیا ہے. ان کی تاریخ پڑھیے, مسلمان تاریخ کو چھوڑیے. آپ دیکھیے پہلے عرب اسٹیٹ کیا تھی, سچویشن کیا تھی, وہ کیا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اسی اسٹیج پہ واپس لائے گا. نہ ان کے پاس کوئی ازم نہیں تھا, کوئی دین نہیں تھا, کوئی مذہب نہیں تھا عربوں کے پاس, جو یہ جاہل لوگ تھے وہاں کے. ان کے پاس صرف ایک حالت تھی, وہ مینٹل اسٹیٹ تھی. اسی مینٹل اسٹیٹ پہ وہ چلتے تھے, ایک جنونی کنڈیشن تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ جو یہ اس پیغام کو, الذین کفروا, یہاں پہ کافر نہیں ہے, دوز ہو ریجیکٹ, جنہوں نے اس پیغام کو جھٹلایا, اس سے انکار کیا, وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت سے, آپ اسلام دین الہی سے آپ نکل کر حالت یعنی پچھلی حالت یعنی اعقابکم, اپنے ٹوز, ریٹرن ٹو یور ٹوز, اس پچھلی حالت پہ, اس کیفیت پہ آپ واپس آ جاؤ. کیوں کہتے ہیں وہ, کیوں فتنقلبوا خاسرین, کیونکہ آپ بھی ان کی طرح پشیمان ہو جاؤ. یہاں پہ بھی مینٹل سٹیٹ کی بات ہے. اور جب انسان پشیمان کیوں ہوتا ہے, انسان یعنی کس طرح سے, یعنی اس معاملے میں خسارت ہے, یہ کوئی میٹیریلسٹک ورڈنگ نہیں ہے یہاں پہ, یا کسی معاملہ نہیں ہے, یا سود و نفع کی بات. یہاں ایک انسان حالات اسلام میں, اسلام نے مجھے سکھایا کہ ایک عورت کی عزت کیا ہوتی ہے, عورت کا احترام کیا ہوتا ہے, ماں کیا ہوتی ہے, بہن کیا ہوتی ہے, ہمسایہ کیا ہوتا ہے, یعنی یہ چیزیں, کھانا کیا ہوتا ہے, اور بت کیا ہوتے ہیں. یہ چیزیں اللہ نے سکھائی ہمیں قرآن میں یا دین اسلام میں. اب ایک انسان واپس آ جائے اسی سٹیٹ پہ جب وہ اپنی ماں کو ہی اغوا کر کے اسے شادی کرتا تھا, جو وہ اپنی بہن کے ساتھ شادی کرتا تھا, جب وہ ہمسائے کو قتل کرتا تھا, جب وہ اونٹنی پہ سالہا جنگ کرتا تھا. تو جب انسان واپس آ جائے اس کے پاس ایک فیلنگ ہوگی, اس کے بعد ایک وہ گلٹی, اسٹیٹ آف گلٹی, اسے فیل ہوگی کہ بھائی دیکھو میں نے کیا کیا, میں کہاں پہ تھا. اور کفار جب ایک انسان کو وہاں پہ لے, خود اس کی اسٹیٹ بھی یہی ہے اس وقت, جو اس کے ساتھ ہوا ہے نا تیاگی صاحب کے پاس, یہ بھی اس وقت اگر آپ اگر سچائی کے ساتھ, اگر اسے یہ ایمانداری کے ساتھ اگر یہ جواب دے تو اس سے آپ کی حالت کیا ہے اس وقت. وہ یہی ہے کہ یہ نور سے نکلا اور ظلمات اور اندھیرے میں یہ گر گیا, اب یہ خاسر ہے, اس کے پاس کچھ نہیں, اسے خسران دنیا والآخرت ہو گیا. جو اس آیت میں سٹیٹ ہوئی الرعب, الرعب یہ حالہ نفسیہ, یہ ایک نفسی کیفیت ہے, نہ کہ فزیکل کیفیت. کسی کو ڈنڈے سے ہم رعب نہیں کر سکتے. اردو لغت میں استعمال ہوا ہے. پرابلم جو ہوتی ہے, جو ہندوستان, پاکستان یا ایران کے لوگ ہیں جنہیں عربک سیمیٹک لینگویج ہے, سامی زبان ہے, اور جو اردو ہو, ہندی ہو, سنسکرت ہو, کشمیری ہو, یہ جو زبانیں ہیں یہ ہند آریائی ہے, انڈو یورپین, ایک ٹری سے ہے. مگر اسلام کے بعد ان میں سے اختلاط ہوا ہے. یعنی فارسوں نے عرب سے بہت سے لفظ لیے ہیں, اور اردو میں چلے آئے, ہندی میں چلے. اب رعب ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے, مگر ہمارے یہاں رعب کس معنی میں آتا ہے, دمکی کے معنی میں. تو اس نے وہ اردو معنی اٹھائے ہیں, وہ عربی معنی نہیں ہے. عربی معنی رعب ہے, کرزما, کسی کا کرزما دیکھ کر, کسی کا جلال دیکھ کر, کسی کی میجسٹی دیکھ کر ایک انسان کے اوپر وہ یعنی نفسانی حالت ہوتی ہے,
तो अल्लाह ताला इस आयत में वही बयान कर रहा है, न कि ये कि कोई फिजिकल एब्यूज होगा, कोई यानी उन पे अटैक होगा। उसके बाद क्या, बिमा अशरकू, किसकी वजह से, बिमा अशरकू यानी नहीं कि आप उन्हें डराओगे। अगर आप देखो आयत फी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू अर्रुअब, उसके बाद है इल्लत है बिमा अशरकू बिल्लाहि, क्योंकि जिस चीज से, जब वजह क्या है, इन्हीं का वो शिर्क है, वही है कि इनका जो उन्हें अपने साथ नकली खुदा बनाए थे और अपने साथ जो नकली अरबाब बनाए थे और नकली चीजों पे तकिया किया था, मा लम युनज़िल बिही सुल्तानन, जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ये किसकी बात हुई है, डे ऑफ रेजरेक्शन, जब इंसान मैदान महशर में, जिनकी इंसान वापस हमें वापस लाया जाएगा, रेजरेक्ट किया जाएगा, उस वक्त इंसान को पता होगा वमाअवाहुमुन्नार, तो ऐसे लोगों का ठिकाना नार है, क्योंकि वो क्या नूर से निकले, वो जुल्मात में पड़ गए, अंधेरे से। सफर क्या है, एक इंसान, अगर हम नेचर की बात करें, जो नेचर है, इस्लाम दीन फितरत है, एक इंसान का सफर अंधेरे से उजाले की तरफ होता है। यानी माँ की कोख से जहां अंधेरा होता है तो वहां कुछ दिखाई नहीं देता है बेचारे को, या असलाब अबवी में अपने बाप के सुलूक में, वहां पे भी अंधेरे में ही जाता है, माँ की पेट में, कहाँ पे रहम में जाता है, वहां पे 9 महीने या 6 महीने कम से कम, तो वहां पे एक अंधेरे में एक लाइफ गुजारता है। इसका सफर अंधेरे से, इस दुनियाई सफर की बात कर रहे हैं हम, दिस मटेरियलिस्टिक सफर जो अंधेरे से स्टार्ट होता है और किस तरफ, उजाले की तरफ, मिनज़्ज़ुलमात इलन नूर। इंसान अपने लिए खुद ही बसीर है, हम में वो आयाते हैं कि इंसान देख ले खुद में कि मेरा सफर जो था, हत्ता कि फिजिकल बायोलॉजिकल सफर जो था, वो अंधेरे से शुरू हुआ और उजाले की तरफ, और मुझे वापस पलटना है। ठीक, अब ये इंसान क्या कह रहा है, ये इंसान के ये दहशतगर्दी है। कहा ये तो नेचर की बात हो रही है इस कुरान में, ये कुरान तो स्टेज की बात करें, आप अंधेरे से रोशनी की तरफ आए। अगर फर्ज कीजिए एक इंसान ने रोशनी से, उसे एक मोनिस, हम एक कैंडल को, एक चराग को, एक दिए को, एक सिराज को या शमा को हम क्या मानते हैं, सिंबल ऑफ लाइट, ठीक, रोशनी, जो इंसान को अंधेरे में मोनिस, यानी इंसान को अंधेरे में वो क्या, तस्कीन, ट्रैंक्विलिटी देता है इंसान को। अब कोई कौन सा शख्स होगा जो बोलेगा मैं उजाले से निकलकर अंधेरे में आऊंगा? तो असल में प्रॉब्लम है कि ये बंदा जो है, इसने न अरबी जबान पढ़ी है, न लुगत पढ़ा है, न तफसीर पढ़ी है। इसे चाहिए कि तफासिर पढ़े, यानी इसके लिए सबसे बेहतरीन तफसीर है तफसीर नमूना, सबसे आसान है, या तफसीर अमसल आयतुल्लाह शेख नासिर मकारिम शिराजी दामद शरीफ का तफसीर पढ़े कम से कम। अगर सुन्नी तफासिर इसे डाइजेस्ट नहीं हो रहे, ठीक, आप शिया तफसीर पढ़ लो या तो, और दूसरे कम्युनिटी के तफसीर पढ़ो, ज़ैदी तफसीर पढ़ो, छोड़ो शिया सुन्नी को, उन्होंने आपको आपके बकुल दीन से निकाला, जाओ ज़ैदियों के पास, उनकी तफसीर उठाओ, देखो क्या है, या दूसरी कम्युनिटी, उसके बाद कहो कि भाई नहीं इस्लाम दहशतगर्दी है। अगर इसकी प्रॉब्लम एक माने फिक्र से है, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहलुल हदीस हो, सलफी हो, जो भी, या शिया इतना अशरी हो, इनसे इनकी प्रॉब्लम है, आप बोहरों के पास जाओ, उनकी तफसीर पढ़ो। यानी ये जो कुरान है ना, जितने भी मज़ाहिब इस्लाम के मुश्तरक हैं जी, इसका ये कहना कि ये सब दहशतगर्द हैं, यानी जितने भी मसालिक हैं, जितने भी मजहब हैं, ये सब पे यहाँ पे यानी अनजाने में क्या कि जानबूझकर अपनी इग्नोरेंस, यानी जहालत की वजह से ये सब मुसलमानों के यानी एक ऐसा क्राइम कर रहा है कि अनजाने में। तो इसका सफर भी वही है कि जिस तरह यहाँ पे इशारा है कि ये आयत खुद इसी पे फिट हो रही है कि इसका ये अंधेरे में घुसा, तो फिर अंधेरे से वापस निकलना, तो हम तो यही करेंगे कि अल्लाह से कि अल्लाह इसे हिदायत करे कबल ज़हूर महदी अलैहिस्सलाम, इसका कुछ हो सकता है। अभी इसके पास टाइम है, तो तौबे के दरवाजे खुले हुए हैं, इसे चाहिए कि तौबे की तरफ वापस आए। जी नाज़रीन, देखा आप लोगों ने कि जो ये जितेंद्र त्यागी इस आयत से समझ रहा था कि दो माना जो उसने टारगेट किए थे, एक तो कफरू है, दूसरा रौब। तो रौब का जो उन्होंने उर्दू माना लिया था, जो हम
किसी पे रोबो दबदबा, किसी पे फोर्स करना समझते हैं, जबकि यहाँ पर कॉम्पेल वो और फोर्स के माने में, हाँ इसने कॉम्पेल और फोर्स के माने में दिया था। हाँ जी जी जी, सही। तो यहाँ पर वो माना नहीं है, और कफरू का माना भी वो कुफ्र नहीं है, बल्कि अपनी साबिका हालत पे वापस जाने के माना में है। अगर ये यहाँ पे जो ओरिएंटलिस्ट के छोड़ लीजिए, जो फिलोसफर हैं, वेस्टर्न जी फिलोसफर्स, इस्लामिक फिलोसफर को छोड़ ले आप, जी जी ठीक, आप जो वेस्ट के हैं, जो इन्होंने रअब पे, इस हालत पे जिन्होंने इन्हें रिसर्च किया है, तो उनकी जी तरफ आप जाइए, तो उनसे पूछिए कि रअब और खौफ में क्या फर्क है भाई। ठीक, तो दहशत, रौब, ये अलग अलग चीजें। दहशत को अरबी में इरहाब कहते हैं। जी ठीक, यहाँ पे इरहाब नहीं आ रहा है, यहाँ पे खौफ की बात भी नहीं आ रहा है कि खौफ दूसरी हालत है, मगर यहाँ पे रौब ये मेंटल स्टेट है, हालत नफ्सिया, जो ये वेस्टर्न फिलोसफर्स की जो है उनकी तफसीर है। और रौब ये हालत नफ्सिया, ये एक नफ्सियानी हालत है, ये मेंटल स्टेट है। तो गलत माने में इसने इस्तेमाल किया। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आपने इस आयत के सिलसिले में भी हमें आगाह किया कि असली जो ये मंश इलाही है वो क्या है, और जो ये त्यागी ने समझा है वो बिल्कुल ही गलत है। तो नाजरीन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी आप लोगों से ये अर्ज की थी कि अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है कुरान करीम के सिलसिले में, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए, इंशाअल्लाह ताला उन सवालात का जवाब दिया जाएगा। तो मौलाना साहब, जैसा कि हमने पहले ही आपसे बताया था कि आज क्योंकि शब नवरोज़ भी है, तो उसके सिलसिले में भी बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं और माशरे में आम इंसानों को बहुत ही कंफ्यूज किया जाता है। तो मौलाना साहब, नवरोज़ के सिलसिले में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो ये नवरोज़ हम लोग मनाते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान वगैरह में, मुझे बताइए मौलाना साहब कि क्या ये जो मशहूर हो गया है कि ईरान से अडॉप्टेड है, ईरान से लिया हुआ कल्चर है, क्या ये सही बात है, या इसकी कोई इस्लाम में भी कोई हैसियत है, शरअन भी कोई इसकी कोई हैसियत है? जरा इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, जब हम नवरोज की बात करते हैं, इस नवरोज खुद इस इसम के मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस हैं, तलफ़ुज़ हैं। अरबी में इसे कहते हैं नीरोज, ठीक, जो कुर्द है वो इसे कहते हैं नईरोज, जो ईरान में इसको कहते हैं नूरोज, नुहरोज। तो यहाँ पे हम कश्मीर हो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान के लोग, तो ये लोग इसे नवरोज ही कहते हैं। ठीक, क्या ये पर्टिकुलर एक कौम फारस की ईद थी? यानी पहला क्वेश्चन मार्क है जी। इससे पहले कि हम ईरान को समझ ले थोड़ा सा, ईरान पर्टिकुलर एक कौमियत नहीं है। ईरान में जो ईरान में मुख्तलिफ अक़वाम रहते हैं, अक़वाम से क्या मुराद है? अक़वाम मुख्तलिफ नजात के लोग हैं। फर्ज कीजिए ईरान में बलोची भी रहते हैं। हम प्रेजेंट ईरान की बात करें, अगर हम ईरान को जाए अफगानिस्तान के दौर में, जिन्हें जो सफ़ी से पहले था दौर था, तो उस दौर में ईरान तो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, लेहिस्तान, हत्ता कि जो आज आपके पास यूक्रेन है, ये भी ईरान का हिस्सा था। रूस ने अलग किया ईरान से, जो उन्होंने उस्मानियों ने ईरान से अलग किया, उस्मानियों से ये रूस ने अलग किया था उस जमाने में, यूक्रेन जहाँ जंग चल रही है। अज़रबैजान, टर्की, ये पूरा इलाका, हत्ता कि जब हम कहते हैं कि फारसों के साथ जंग हुई मुसलमानों की, कादिसिया, वो कादिसिया कहाँ पे लड़ा गया? मौसुल में। मौसुल इराक का वो आखिरी हिस्सा है जहाँ पे दाइश आई। तो ईरान बहुत बड़ी स्टेट थे। ईरान में सिर्फ फारस नहीं रहते, ईरान में लोर रहते हैं। अगर आप जाओगे लोर, बिल्कुल यहाँ अराक जिसे कहते हैं, इस्फहान साइड से, वहाँ जिन्हें बरूजद, ये बरूजद इलाका जो ईरान का, वो लोर रहते हैं, लोर कम्युनिटी है। और अगर आप गीलान जाओगे, वो गीलकी हैं, वो फारसी खुद को नहीं कहते हैं, वो खुद कहते हैं गीलकी। उनकी लैंग्वेज भी गीलकी है, फारसी से मुख्तलिफ है। ठीक, और लोरी भी इससे मुख्तलिफ है ईरानियों से। और वहीं पे आप अज़रबैजान जाओ, अज़रबैजान में वो
टर्किश बोलते हैं, आजरी जिसको कहते हैं, और अगर आप दूसरे हिस्से में जाओ वो बोलते हैं टर्की मगर इस्तांबुली बोलते हैं, फर्क है जी। और इसी तरह आप जाओगे अरब जो इलाके हैं वो अरबी बोलते हैं। यानी ईरान में बहुत सी रेसेस हैं, बहुत से नजाद हैं, बहुत से लोग हैं, तो अगर हमने फारस यानी ईद फारस कही तो ये लिमिट हो जाएगा, या कहेंगे कि जो कुर्द हैं, कुर्द कहाँ तक रहते हैं, टर्की तक रहते हैं, कुछ लोग शाम में हैं, कुछ लोग इराक में हैं, कुछ लोग यानी इराक में तो मुस्तकिल कुर्दिस्तान है, कुर्दों के यहाँ पे भी नवरोज मनाया जाता है, ठीक। यानी इसको ईरान के साथ जोड़ना एक मखसूस ये गलत बात होगी कि एक फारस कम्युनिटी के साथ, बल्कि ये पूरे जितने अक़वाम यहाँ पे थे। जब हम अफगानिस्तान में आते हैं तो अफगानिस्तान में ताजिक रहते हैं, वो उनकी भी ईद है, वो ताजिक नजात है, और वहाँ पे वो हज़ारा के हैं, वो भी अफगानिस्तान है, वो भी फारसी बोलते हैं, और उसी के साथ साथ अफगानिस्तान में पख्तून बोलने वाले भी हैं, पश्तो, तो वो भी ईद मनाते हैं। तो इसको हम लैंग्वेज से हम डिवाइड नहीं कर सकते या नजात से, बल्कि जितने भी इस बेल्ट में जो भी इस जुरिस्डिक्शन में रहते थे, जब वहाँ कहते हैं ना मा वराउ नहरैन, मा वराउ नहरैन दजला और फरात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मा वराउ नहरैन असल में क्या है। जो बुखारा, समरकंद ये इलाके जो असल ज़बान फारसी निकली है, इसकी रूट्स है ताजिकिस्तान जी। ताजिकिस्तान असल फारस था, जहाँ पे इमाम बुखारी है ना, जिनने बुखारी साहब ने जो बुखारी लिखी है, सही बुखारी, वो ताजिकिस्तान इसी एरिया के रहने वाले थे, वो फारस थे असल में। बाद में ये बिखर गए, यहाँ हो गए, जब इनमें इन्होंने हुकूमतें बनाई, ये पावर हो गए, एक हम कहते हैं एक नेशन, एक मिल्लत मशहूर हो गई, जिस मिल्लत में बहुत से अक़वाम रहते हैं, ये पहली बात है। अब इस कौम में हर किसी मिल्लत की, हर किसी इलाके हैं, ये कल्चरल एक दूसरे से वाबस्ता है। कल्चर में, सकाफत में क्या आता है, सकाफत में ईद आती है, सकाफत में ये चीजें भी आती हैं, ठीक। अगर हम आज किसी ऑस्ट्रेलिया के या कोई जो कनाडा का रहने वाला है, कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो कनाडा का, अगर आप कैनेडियंस उनको कैनेडियन सिटीजन को बोलेगा मुझे बताओ सिविलाइजेशन, व्हाट्स सिविलाइजेशन, उसको पता नहीं है, वो उनको पता ही नहीं है, उनके पास कोई तहजीब ही नहीं है। तहजीब से क्या मुराद है? अगर आप यही बोलोगे ऑस्ट्रेलिया, उनके पास भी कोई तहजीब नहीं है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान के सिंध में रहने वाले को किसी तहजीब क्या है वो बताएगा तहजीब, या इराकी को पता है तहजीब, कश्मीरी को पता है अपनी तहजीब। इसीलिए जो बिलादुल फुर्स इसको कहते थे हम, बिलादुल फुर्स, जिस तरह से इसको हम कहते थे ना, कश्मीर, पाकिस्तान, सिंध, बिलादुल हिंद के शहर, इसी तरह ये बिलादुल फुर्स, ठीक, इनके पास तहजीब व तमद्दुन, दीनियात और बाकी चीजें थी। और मिस्र में हम जाए तो मिस्र में भी 21 मार्च को ईद मनाई जाती है, शमीमुर रेह, यानी वो इस वक्त शम करते हैं किसको, ताज़ा हवा को, यानी रबी उनके पास भी है, कल्चरल है उनके पास, ठीक। माना कि इनके पास है। सईद सिस्तानी साहब ने एक बेहतरीन गुफ्तगू की है इस पे, यानी एक इस्तिफ्ता का जवाब दिया है, कहा कि ईदें दो तरह की होती हैं, एक होते हैं अयादी तासीसी, यानी तासीस जिसकी बुनियाद इस्लाम ने रखी, वो 4 ईदें हैं मशहूर। पहले ईद फित्र, उसके बाद ईद उल अदहा जिसको हम बकरे की वाली ईद कहते हैं हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, और तीसरी यौमुल जुम्आ, ईद उल जुम्आ, और चौथी ईद उल्लाहिल अकबर, ईद गदीर, जिसको हम ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, वरना इमाम सादिक ने कहा कि ईद उल्लाहिल अकबर, अल्लाह की सबसे बड़ी ईद जो खुशी का दिन है वो गदीर खूब वाला दिन है, ठीक। इनको कहते हैं ईद तासीसी। जब शरीयत मुहम्मदी, और एक हदीस मुझे याद आ रही है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, जिस तरीके से सितारों में सूरज और चांद चमकता है, इस तरीके से चारों ईदों में जी ईद गदीर तमाम ईद उल अकबर, ईद उल्लाहिल अकबर है, ठीक। जी। तो उसके साथ साथ ही दूसरी होती है ईद तकरीरी, अयादी तकरीरी। तकरीरी यानी जिनका तकरार हुआ, यानी जो एक नेशन से दूसरे नेशन तक, यानी एक जील एक नस्ल से दूसरे, जनरेशन टू जनरेशन चलती आई, और इस्लाम ने उनसे मना नहीं किया, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। यहाँ पे ये टॉपिक होगा एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक, यानी जो इंसानी स्टडीज,
एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो हमारा कल्चर है उसमें, तो हमें सोशियोलॉजी की तरफ यहाँ जाना है कि कैसे ये शुरू हुई। ठीक है, ये लोग मनाते थे। अब हमारे यहाँ क्या ये ईरान से आया है बहैसियत कौमियात? नहीं, हमारा तो कोई कौमी रिश्ता नहीं है, लिंग्विस्टिक रिश्ता नहीं है इनके साथ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है एक ट्री से है हम, हमारी जबान कश्मीरी, मगर कल्चर है नहीं, कल्चर नहीं है, हमारा कश्मीरी कल्चर है। हाँ, यहाँ पे ईरानी लोग आए हैं, उन मुबल्लिगीन आए हैं वहाँ पे, उनमें से अरब भी थे वहाँ, उनमें से अजम भी थे, ठीक, सब लोग ईरानी नहीं थे। कुछ लोग यहाँ पे जो आए हैं वो लोग अरब थे, डायरेक्ट अरब थे वो लोग, जैसे कि जो मदीन साहब, जो यहाँ पे बड़ा आस्थान है उनका मदीन साहब में, हमारे दोस्त हैं शेख जासिम, बहरीन के हैं, उन्होंने उन पे एक डेजर्टेशन, एक मकाला लिखा है, उस मकाला में है रसालत अल-हुसैन मिन अल-बहरैन इला कश्मीर, रसालत अल-हुसैन मिन अल-बहरैन इला कश्मीर, यानी हुसैन अलैहिस्सलाम की रिसालत, उनकी मैसेज बहरीन से कश्मीर तक। उसमें ये डायरेक्ट लिखा कि ये लोग डायरेक्ट बहरीन से, ये अरब थे, न कि अजम, न कि ईरानी थे। ठीक, जो चीजें इन्होंने लाई हैं वो चीजें एक्सेप्ट की लोगों ने। अब तशय्यु में हमें अब देखना कि तशय्यु में, पहले तशय्यु में ईद नवरोज की क्या हैसियत है? क्या शिया ईद नवरोज मनाते थे? क्या हमारे पास कोई टेक्स्ट है? क्या हमारे पास, उसके बाद उसके सेहत की बात करेंगे, ठीक, टेक्स्ट अगर हम अरबी अदबियात पे जाएंगे, फारसी अदबियात को छोड़ के, ठीक, जब हम इसको जोड़ते हैं ना डायरेक्ट, हमें अरबी लिटरेचर में, आदाब अरबी में हमें अशआर मिलते हैं, बहुत बड़े शायर जो थे, बख्तरी, बख्तरी तो बड़े शायर थे, तो फरजदक के ज़माने के हैं, तकरीबन अब्बासाइड एरा है, उस ज़माने के थे। और हमें सैयद रजी, शरीफ रजी, नहजुल बलागा जिन्होंने कंपाइल की हैं, उनके अशआर भी मिलते हैं, वो आले बोया के ज़माने के हैं, उन्होंने नवरोज़ पे शायरी की हैं, कसीदे लिखे हैं, ठीक। यानी अगर ये ईद नहीं थी तो बख्तरी ने कहाँ से लाया? अगर ये ईरानियों की मखसूस थी तो। और हदीस भी मिलते हैं, एक हदीस है सलमान मोहम्मदी का, सलमान मोहम्मदी इमाम अली अलैहिस्सलाम अमीर अल मोमिनीन अलैहि अफजल सलात व सलाम की खिदमत में आए, तो उन्होंने उसे फालूदा खिलाया। तो इमाम अली ने कहा कि सलमान ये क्या है? कहा कि आज नवरोज का दिन है। तो इमाम अली ने कहा हर रोज को नवरोज बनाइए। तो टेक्स्ट इमाम अली ने रिजेक्ट नहीं किया, इमाम अली ने नहीं कहा कि ये क्या बिदअत बनाई है आपने, इमाम अली ने नहीं फरमाया कि ये गलत चीज है, ये फारसों की ईद है। तो उसने कहा कि अगर इसमें आप सिले रहम करते हो, एक दूसरे को खिलाते पिलाते हो, तो हर रोज ऐसी ईद मनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी यहाँ पे फ़क़ही एतबार से हमें तसामुह मिलता है, इजाजत है अगर ऐसी चीजें हैं जो सोशल या बाकी चीजें हैं, इनको जो प्रभु ने बढ़ाए, इनको जो इंसानों में यानी एक खुशी गुडविल हो, तो ऐसी चीजें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी हदीस अहले सुन्नत के यहाँ अगर हम देखें तारीख, जो उमर इब्न अब्दुल अजीज, जो ये कहते हैं कि वो खलीफे खामिस हैं, इनके यहाँ 5वें खलीफे के दर्जे पे हैं, इतना एहतराम उनके करते हैं, आदिल था, तो बहुत ही, हत्ता कि शिया भी उसको प्रेज करते हैं, तो शिया ने भी उनके खिलाफ नक़द नहीं किया। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने ऑफिशियली नवरोज के दिन जितने भी ईरानी होते थे, ऑफिशियल्स होते, उनके यहाँ खिराज माफ किया जाता था इस महीने का, उनमें तोहफे और बाकी चीज दिए जाते थे उनके दौर में, ठीक। उसके बाद जब बनी अब्बास का दौर आया, तो बनु अब्बास ने इसे कैलेंडर जो था, पर्शियन कैलेंडर, यानी पर्शियन कैलेंडर क्या है? यानी पर्शियन कैलेंडर है, इसको कहते हैं हिजरी इस्लामी कैलेंडर ईरानी। हमारे पास दो कैलेंडर हैं, हिजरी शमसी, हिजरी कमरी। अब लोगों ने बोला है कि हिजरी कमरी को इस्लामी कैलेंडर जी, तो उसको हम नहीं, मगर दो कैलेंडर हैं, दो निज़ाम है, एक तो सोलर है, दूसरा लोनर है, तो ये साइंटिफिक है, हर किसी को कबूल करना है। अगर हम नमाज सुबह के लिए सूरज के निकलने को और सूरज के गुरूब होने को ही मीनार समझते हैं, तो उस वक्त क्यों करते हैं इस सूरज की टाइमिंग के लिए, ठीक।
یا دوسری چیزیں جو ہیں کہ سولر سے وابستہ ہے، زوال شفق اور باقی چیز، تو یہ تو نمودات سورج سے تو ڈیپینڈ ہے، نظام ہے، نظام شمسی. ٹھیک جی. جو ایرانی کیلنڈر ہے تو عباسائڈ پیریڈ جو تھا بنی عباس کا، انہوں نے کوشش کی کہ اس کیلنڈر کو ہم مسخ کریں، کیونکہ جو عید نوروز کی نسبت تھی جو مومنین دیتے تھے، وہ کہتے کہ یہ وہی دن تھا جس دن امیر المومنین علیہ السلام کو تعین کیا گیا غدیر خم میں. جی. غدیر خم میں جس دن پیغمبر نے امیر المومنین علیہ السلام کو تعین کیا، یعنی 18 ذی الحج، 18 ذی الحج کا دن تھا، اور اسی دن 21 مارچ بھی تھا، یا 21 آذر عربی کیلنڈر شمسی کے حساب سے ان کے یہاں بھی ہیں. تو عباسائڈ اعوذ باللہ ایک تھا ان کا، ان نے کیا کیا، انہوں نے اسے رکھا کہ 21 حزیران، یعنی 21 جون کو کیا. اس کے بعد اصل پرابلم یہی تھی کہ اس کا ڈیٹ جو تھا غدیر کے ساتھ ملتا تھا، تو اس کی بڑاس نکالنے کے لیے انہوں نے اس کے لیے ہمارے یہاں سپورٹیو حدیث بھی ہیں. معلّہ ابن خنیس کی روایت ہے کہ عید غدیر یعنی نوروز وہی دن ہے جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو غدیر خم میں تعین کیا اور لوگوں سے ان کی بیعت لی. حتیٰ کہ رہبر معظم نے بھی جو 1990 میں انہوں نے سپیچ دی ہے جی، تو اس میں انہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. ہمارے پاس ایسا حدیث ہے، نوروز وہی دن تھا جس دن پیغمبر نے جناب امیر المؤمنین کو، یعنی ہمارے یہاں جو کشمیر کے عرف میں ہے، ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کی مبارک ہو. جی جی. تو ہمارے پاس بیس یہ حدیث ہے، نہ کہ ان کی قومیات. ہم جس کو کشمیر، ہاں سولر حساب سے یہ مولا علی علیہ السلام کی وہ تعین کا دن ہے. اور معلّہ ابن خنیس کون تھے؟ ان پہ نجاشی صاحب اور غزائری نے کہا کہ جھوٹے تھے، یہ غالی تھے، یہ تھے. اس کے بعد علامہ یعنی شیخ توسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بحوث فی فقہ الرجال کتاب ہے، پیج نمبر 184 میں لکھا ہے جو معلّہ ابن خنیس تھے قوام، وہ تھا قوام ابی عبداللہ صادق علیہ السلام، یعنی جناب صادق علیہ السلام کے مضبوط ساتھیوں میں سے ایک. قوام کا لفظ آیا ہے جی جی، مبالغہ کے ساتھ. قوام واو پہ شدہ ہے، یعنی ان کے زبردست جانثار ساتھی تھے. اور جو انہوں نے تنقید کی تھی باقیوں نے، جو نجاشی اور غدائری، خود تو اصل میں ان دونوں رجال کی کتابوں پہ بھی کچھ بحث ہیں ہمارے یہاں کی. اس پہ تو غدائری کی رجال کی کتاب پہ تو حلم کھلا کہتے ہیں کہ تحریف یہ محرف ہے. ٹھیک. اس کے بعد باقی جتنے بھی مشہور ہمارے آج تک متاخرین نے معلّہ ابن خنیس کو سراہا ہے. حتیٰ کہ سید ابو القاسم الخوئی رضوان اللہ تعالی علیہ جو فقیہ تھے، علم رجال پہ صاحب نظر تھے، محدث تھے، مؤرخ تھے، اور کاسمولوجی سے لے کر جغرافیہ پہ، میں جغرافیہ میں اسی کی جو نظریہ کو قبول کرتا ہوں جو انہوں نے رؤیت ہلال پہ دی ہے، بہترین ہے، میں خود وہ مانتا ہوں. تو بہترین میرا عقیدہ ہے، کافی صاحب نظر تھے اس فن میں، وہ کاسمولوجی میں. تو جناب نے اپنے کتاب میں معجم الرجال الحدیث صفحہ نمبر ہے جلد 19 اور پیج نمبر ہے 269 میں ابو القاسم خوئی نے کہا کہ وَمُقْتَدَى أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا صدوقًا. یہ کہتا ہے کہ ان نٹشل، میں آپ کو بتا رہا ہوں نٹشل میں، جو معلّہ ابن خنیس وہ صدوق تھے، ٹرسٹ ورتھی تھے. اور اس کے بعد کہا کہ کیسے ہی ممکن ہے سید خوئی، کیسے ہی ممکن ہے کہ وہ لوگوں نے اس پہ کذاب ہونے کی تہمت لگائی، کہ جبکہ امام نے حدیث صحیح میں فرمایا کہ وہ مستحق جنت ہے. یعنی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث میں امام نے کہا کہ ہمارے
अवामिर की तरफ लोगों को रहनुमाई करते हैं, हमारी तरफ बुलाते हैं, अन करीब इसे दाऊद कत्ल कर देगा। और इसे कत्ल भी किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने, इस पे गिरिया भी किया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम ने। तो इन्हीं की हदीस है ये फरमाते हैं कि नवरोज वही दिन है जिस दिन अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तअय्युन हुआ गदीर खुम में 18 जिलहज के दिन। तो लोग कश्मीर के इसी निस्बत से, क्योंकि जो कैलेंडर है वो शमसी हो या कमरी हो, तो बात तो निज़ाम है वक्त देखने की। तो इस्लामी जो फ़िक़्ह और हज के लिए हम लोग किसका तअय्युन करते हैं? जो कमरी है, जो चांद पे चलता है। मगर फसल बहार के लिए, बाकी फसल के लिए अरबों के पास भी कैलेंडर है, शमसी कैलेंडर। ईरानियों के पास भी शमसी कैलेंडर है। वो ईरानियों का फर्स्ट आता है 1 फरवरदीन, और जो अरब है उनका आता है 21 आज़र, और वही आता है 21 मार्च। और इसी दिन के मुनासिबत पे हदीस भी है कि ये कितना पुरमसरत दिन है। इसी दिन मौला साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर अक़दस भी होगा। बहारुल अनवार की हदीस है, और रहबर मुअज़्ज़म ने अपनी इस स्पीच में कोट किया है ये हदीस। और इसी दिन जनाब इमाम कायम अलैहिस्सलाम वो दज्जाल को वासिल नार करेगा, कत्ल करेगा। इतना बड़ा दिन है, मुबारक निस्बतें हैं हमारे पास। और अगर हमने गज़ाइरी या हमने नजाशी की बात कबूल भी की कि भाई इस सनद में खलल है, तो हमारे पास तो कानून तसामुह है, कानून तसामुह के हिसाब से ऐसी चीजें हम मना सकते हैं। इसीलिए फुकहा कहते हैं कि भाई ये ईद तासीसी नहीं है बल्कि ये ईद तकरीरी है, तो इसमें इसके मनाने में कोई इश्काल नहीं है, क्योंकि इसमें जो इबादत है, गुस्ल की बात है, गुस्ल करना हर वक्त मुस्तहब है। जब भी कोई इंसान गुस्ल करे खुद ये मुस्तहब, ये एक मुस्तहसन काम है। और नए कपड़े लगाना, साफ कपड़े लगाना, यानी नए नहीं, नए खरीदना, साफ सुथरे कपड़े लगाना, ये भी मुस्तहसन काम है। और इंसान जो कोई फ्रेग्रेंस, कोई खुशबू, सेंट और अतर लगाना, ये भी मुस्तहसन है। तो ये काम इनमें, और नमाज, नवाफिल और दुआ, तो ये सब चीजें मुस्तहसन है। तो ये चीजें करनी चाहिए। और ताकीद की है उलमा ने कि रजाए इलाही, कि हर चीज में हम रजाए इलाही रख सकते हैं। जो भी हम फराइज तो हम पे फर्ज है, हमें पढ़नी है, चाहे वो कबूल हो या ना हो। कबूलियत तो अल्लाह के पास है, हमें फराइज पढ़ने। इसके बाद जो भी मुस्तहब, नवाफिल, सुन्ना चीजें हम करते हैं इसी नियत से कि खुदा कबूल के लिए, रजा की नियत से। जी। तो मसला यह है कि हमारे नसूस में है, तो हमने किस निस्बत से ली है? कि ये गदीर की निस्बत से ली है कि गदीर खुम का वाक़ा इस दिन हुआ था, तो इस निस्बत से हमने ली है, तो हम इस दिन को मनाते हैं। और रहबर साहब का बेहतरीन नुक्ता है कि नवरोज़ का मकसद यही होता है कि इंसान की जिंदगी में तागीर हो जाए, इंसान की जिंदगी में एक नया चीज आ जाए, नवरोज की माने कि एक रेवोल्यूशन आ जाए। हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम फकत गोश्त और मच्छी और बाकी इन चीजों पे रखते हैं। नवरोज का मतलब है कि इंसान अपने जिस तरह नेचर में, जिस तरह के हमारे आब हवा, हमारे गिरदो नवा में तब्दीली आती है, तो इसी तरह हम अपने ज़मीर में भी तब्दीली लाए। जिन रिश्तों में भड़ास आई है, खटास आई है, उनमें एक प्रॉब्लम हुई है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि नवरोज के दिन उनमें फिर से बहार लाए। हम वो सिले रहम हो जाए तो हमारे बहुत से मशाकिल और प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। यानी इसमें सिले रहम, लोग एक दूसरे के पास जाते हैं, पड़ोसियों के पास, और बाकी चीजें, ये चीजें। वरना यानी इंसान अगर कहे कि फिर भाई ईद क्या है? ईद वही दिन है, अमीर अल-मोमिनीन ने नहीं कहा कि ईद वही दिन है जिस दिन इंसान गुनाह न करे। नहीं, ईद का वो तो है जनरल, हम कहते हैं कि खुशी का दिन है मोमिन के लिए, मगर जो ईद है ये 4, वो ईद तासीसी है, और जो ये ईद नवरोज है इसे हम ईद तकरीरी कहते हैं। और हमारे पास फुकहा और अइम्मा मासूमीन की तायीद शुदा अहादीस हैं, और फुकहा ने उन पे तायीद की है। तो इस मुनासिबत से हम ईद नवरोज को मनाते हैं, न कि किस मुनासिबत से कि इसमें भाई वो ईरानी कल्चर था, क्या था, उनका कल्चर क्या है, वो उनको मुबारक हो। जो कुर्द है उनका कल्चर है कि उनका काऊ एक था, उनमें एक बहुत ही बड़ा बहादुर शख्स,
वो लड़ाकू था, वो शुजा शख्स था, काऊह उसका नाम था, काहुल हर्ब इफ आई एम राइट, नहीं मुझे लास्ट नेम में थोड़ी सी पता नहीं है इस वक्त, जहन से निकल गया, तो उसका मगर काऊ था उसका नाम। तो उनने जालिम बादशाह को शिकस्त दी, ये कुर्द कहते हैं। तो उसी की याद में वो लोग कुर्द अकराद इस वक्त वो आग जलाते हैं। तो हमें तो उसके साथ कुछ नहीं है कि आग जलाए, कोई आग में कूदे और क्या, हमें तो जहां भी जिस चीज की निस्बत आले मोहम्मद से लग जाती है तो वो हमारे लिए मुबारक दिन है जनाब। जी जी, तो ये एडॉप्टेड नहीं है, बल्कि इसमें जो अहादीस आई है उस पर फुकहा ने फतवा भी दिया है कि ये ईद मनाई जा सकती है। और मौला नसूस जो हमारे नसूस में है, तिब के नसूस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, हम इसलिए मनाते हैं। वरना जो ईरानी कल्चर वो उनमें से बहुत चीजें हैं, उनके यहाँ चार शंबे सूरी भी है, जो ये कहते हैं ना कि हमने ईरानियों से मनाया। तो फिर नवरोज से पहले एक आता है चार शंबे सूरी, जो आज भी ईरान में मनाते हैं। वो इस दिन आग जलाते हैं, आग पे जंप लगाते हैं, कूदते हैं। तो इस्लामी हुकूमत उनको मना करती है, मगर कल्चरल लोग मनाते हैं वो लोग। तो वो क्यों नहीं आया यहाँ पे जी। और नवरोज के बाद एक और दिन आता है उनके यहाँ, 13 बेदरी, 13वें नवरोज के बाद जब 13 दिन होते हैं, जो अक़वाम फारस हैं या ये अकराद हैं, कुर्द हैं, ये इस दिन घर से बाहर निकलते हैं, पार्कों में बैठते हैं, जो वहां पे हरियाली होती है उस पे ये गार्ड लगाते हैं, नोट्स बांधते हैं। तो वो चीज अगर हमने ये कल्चर लिया था ना एज अ कल्चर, उनसे ये अडॉप्ट किया था, तो ये चीजें भी इनके इसके साथ आती जी। ये तो रिलेटेड है ना, ये चीजें क्यों नहीं आई? ना वो आग ही आई यहाँ पे, ना ये सब्जियों पे वो ग्रो है या कहते हैं नॉट्स बांधने, वो विल नेवर डिड दीस थिंग्स। सो हमने उस मुनासिबत से ली है जिस निस्बत से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वही दिन है जिस दिन अमीर अल-मुमिनीन को गदीर खुम में बिनस्स इलाही उन्हें खलीफा बिला फसल मुकर्रर किया गया था। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आपने इस मौजू पर भी बहुत अच्छी रोशनी डाली कि हमें भी आपने मुस्तफ़ीज़ किया और नाज़रीन को भी आपने मुस्तफ़ीज़ किया इन बयानात से। और नाज़रीन आपने देख लिया कि जो रोज़े नवरोज़ है कि ये ईरान से अडॉप्टेड नहीं है, ईरान से ली हुई ईद नहीं है, बल्कि ये ईद जो है अइम्मा ताहीरीन ने इसकी ताईद की है। और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जो विलायत का ऐलान हुआ था गदीर खुम में, तो इसी 21 मार्च को हुआ था। तो उसी मुनासिबत से ये ईद मनाई जा रही है। और भी बहुत सारी मुनासिबतें हैं, अगर आप किताबों में जाएं मुताला करें, इस दिन की मुनासिबतें बहुत पाई जाती है। और इसके मौलाना साहब अहकाम भी है, गुस्ल भी है वगैरह, तो आप उनको किताबों में नाजरीन देख सकते हैं। शेख अब्बास कुम्मी ने मफातीव में जिक्र किया है। असल में प्रॉब्लम यह है कि जब हम कहते हैं कि बिहार अल-अनवार में मजलिसी ने लिखी है जी, तुरही ने फला किताब में लिखा है, मदीनतुल मआजिज में शेख मुहक्किक बहरानी में, तो लोगों को मालूम होना चाहिए ये हस्तियां कौन थी। जी, इनके पास हदीस का इजाजा था जी, इनके पास डायरेक्ट इजाजे नामे थे इनके हदीस के, इसीलिए ये सनद नहीं बयान करते हैं ये लोग। इन्हें जरूरत नहीं, जिसके पास इजाजा हो ये डायरेक्ट कर सकता है बयान। जी। तो अल्लामा मजलिस ने जब ये बयान की नकल किया तो वो एक्नॉलेजमेंट है इसका जी। तो अल्लामा मजलिस ने नकल किया है, तो खुद वो उनके पास इजाजा था, खुद वो तुरही के स्टूडेंट थे, उनके पास भी इजाजतनामा था। तो अहादीस से जैसा कि इस भाई ने लिखा है, सही लिखा है कि न कि हम ईरान की जो उनकी कौमी क्या है, उनका साल नौ है, उनका वो रास सना जिसको कहते हैं हम हैप्पी न्यू ईयर, वो होगा उन्हें अपनी जगह, मगर हम इसे हैप्पी न्यू ईयर या रास सना या कुछ नहीं लेते हैं। हम इसे इस गरज से लेते हैं कि इस दिन अमीर अल-मुमिनीन को तयन किया गया है। अगर हमें गदीर मनाने 18 साल तक हमें गदीर के बाद पाबंदी लगी ईद गदीर को, अगर हम इसे अब साल में 4 बार भी मनाए तो कोई मुश्किल नहीं, हर 2 गदीर का जिस्म भी कम है। जी मौलाना साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया।
ناظرین میں آپ سے پھر سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی قرآن کریم کے سلسلے میں کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا جواب دیا جائے گا، اور یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی کنٹینیو رہے گا۔ یہ سلسلہ سنڈے کو 9 بجے، ہم اگلے سنڈے بھی آئیں گے انشاءاللہ، جس میں ہم اور ایک آیت کے جو اشکالات جتندر تیاگی نے کیے ہیں ان کا جواب دیں گے۔ تو السلام علیکم۔ روز نوروز ہیں، آپ کو پھر سے اس عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔